Hello friends, this is Dr. Neeraj and we are into the revision summary of classical mechanics part 11. And today I am going to discuss about special theory of relativity. So first of all, we will discuss about Lorentz transformation. So I will be discussing all the formulae in short and we will discuss some previous year problems based on these formulae also. तो सबसे पहले लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है बेटा, we are having two frames of reference, S frame and S dash frame. Okay, S frame and S dash frame और ये मूव कर रहा है with velocity v. Now suppose some event it is happening in the frame S और उसके मुझे पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट्स आई नो. Position coordinate is x and xyz and then t time coordinate, and the coordinates of the same event as observed from the frame S dash, they are x dash, y dash, z dash, t dash. Now how these are related? So now if S dash is moving in x direction, so it is depending upon the direction, then x dash is x minus vt into gamma, where gamma is 1 by 1 minus beta square root and beta is v by c, or I mean to say it is 1 minus v square by c square root. Y dash is y, z dash is z. It means nothing happens to the y and z coordinates, only the coordinate along the direction of motion it changes. Okay, and if S dash is moving in y direction, then y coordinate will change. This will become y minus vt gamma, z will remain same, and t dash will become t minus vy by c square gamma, and so on. Okay, so if S dash is moving in z direction, then we will have then x and y, they will remain same, and z coordinate it will change, z minus vt gamma, and time of course it will change as this. So these are the Lorentz transformations. So these are the backbone of the special theory of relativity, you can say. Okay, and if we have two events, so अभी हमने एक इवेंट की बात करी है, अगर दो होंगे तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, सो उसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं बेटा. ओके, सो इफ देयर आर टू इवेंट्स, तो फिर आपके जो फार्मूले हैं, देन सेपरेशन बिटवीन देम. ओके, separation between them, because one event is occurring at one position and other is occurring at other position, then separation between them, they are related in the two reference frame via this relation. Okay, so these are the formulae. So this is assuming that the frames, they are moving along the x. So assuming S dash to be moving, and you can modify this, okay, along x direction. Clear? Now, another important property, this Lorentz transformation, it can be represented by a rotation in space. Transformation can be represented as a rotation in space time. इस पे भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया है. Space time, that is Minkowski space. So this is important.
तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है वो सी टी एक्सिस एंड अभी एक्स एक्सिस मान लेता हूं इसको, ठीक है। सी टी डैश एक्स डैश लाइक दिस। तो इस तरह की रोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। और या आप बेटर अगर समझना है इस तरह से नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेट मी से थोड़ा सा अगर आप इक्वली लेना चाहते हैं आप ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सी टी डैश मतलब मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया बाय एंगल फाइव, ठीक है। तो वो उसको मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा अंडरस्टैंड करना इस डायग्राम को। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक। तो हमारे लिए एक तरह से सी टी डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर मैं लगाऊं एंड टी डैश इज रिलेटेड टू टी एज दिस, so it means t equal to vx by c square, so ct equal to vx by c। इसका डेरिवेटिव ले लीजिए dct dvx by c, ओके। so dct by dx v by c, और ये क्या है, स्लोप है ना, दिस इज स्लोप ना, और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट फाई ना, ओके क्लियर। तो इस तरह से वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन एंड वी कैन गेट वेरियस इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज और पैरामीटर्स। चलिए अब कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटीज आपको बताता हूं। एक बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि इनवेरिएंट क्वांटिटीज कौन सी हैं अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवेरिएंट क्वांटिटीज वो आप नोट कर सकते हैं। तो इनवेरिएंट क्वांटिटीज एक तो बेटा आपका चार्ज इनवेरिएंट रहता है हमेशा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहती है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे एक तरह से एग्जाम के लिए। जो प्रॉपर लेंथ होती है वो इनवेरिएंट होती है, मूविंग लेंथ चेंज होती है ना, रेस्ट मास, प्रॉपर टाइम, टाइम चेंज होता है, प्रॉपर टाइम कभी चेंज नहीं होता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यू नीड टू डिस्टिंग्विश। और ये कुछ आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, इन पे पूछा जाता है कि क्या ये इनवेरिएंट है, नहीं है, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। ई डॉट बी इनवेरिएंट रहता है बेटा आपका, एंड देन ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी रहता है। कई बार वो सी को निगलेक्ट कर देता है। इसी तरह आपका डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, डी एलम्बर्टियन, दिस इज ऑल्सो इनवेरिएंट, ठीक। मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी इनवेरिएंट रहती हैं। So these are the quantities that remain invariant under Lorentz transformation. Okay, so quite a useful information that I have written over here आपके लिए। तो नेक्स्ट आता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये इंटरवल स्पेस लाइक है, टाइम लाइक है, कैसे है। तो उसका मैं आपको फंडा बता देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसमें आपका सबसे पहले करते हैं स्पेस लाइक, ओके। तो अगर आपका डेल आर ग्रेटर देन सी डेल टी हो जाए तो यह स्पेस लाइक होता है।
और इंटरवल होता है ये, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज द स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसमें अगर डेल आर ग्रेटर हो जाए, उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए, ओके, तो वो स्पेस लाइक होता है। टाइम लाइक अगर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाए, इफ डेल आर लेस देन सी डेल टी, मतलब टाइम की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए, तो इनको टाइम लाइक बोला जाता है। एंड लाइट लाइक होते हैं जिसमें ये डेल आर इक्वल टू सी डेल टी हो जाए, दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाए, मतलब डीएस आपका जीरो आ जाए, जो डीएस स्क्वायर है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, तो फिर उसको बोलते हैं लाइट लाइट। ओके, अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करते हैं बेटा, जो आपके रिलेटिविटी के हैं। सबसे पहले बेसिक उसमें आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक दो प्रॉब्लम्स भी करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो अभी लेंथ कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ 3D बॉडीज एरिया एंड वॉल्यूम इट विल ऑल्सो चेंज ना। तो हम क्या कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में, मान लीजिए एक फ्रेम है मेरे पास एंड दूसरा फ्रेम है, इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान लीजिए कोई रॉड है, दिस इज अ रॉड, ओके, ये मूव कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने इसमें मेजर कर लिए बेटा एस डैश में। तो एस डैश फ्रेम में तो रॉड रेस्ट पे है ना, बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम एस फ्रेम तो आपके लिए वो मूविंग है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर लेंथ है वो कितनी होगी, आपने x1 डैश x2 डैश मेजर कर लिए, तो आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर लेंथ तो ये होगी ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ मींस जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट फ्रेम में लेंथ होती है, ठीक है। और अब हमने मेजर किया है, क्या करा है रिलेशन में हमने, कि जो x1 डैश होगा x1 माइनस वी टी गामा होता है, x2 डैश x2 माइनस वी टी गामा होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप इसमें ये कर देंगे सब्स्टिट्यूट, ये अगर लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, तो क्या आ जाएगा एल नॉट, लेट इट बी एल गामा, तो एल इज एल नॉट बाय गामा ना, और गामा क्योंकि ग्रेटर है, या ये कह लीजिए ये ऊपर आ जाएगा फैक्टर, सो विच इज लेस देन एल नॉट ना, ठीक है। तो ये मूविंग लेंथ होती है, एल जो होती है मूविंग लेंथ होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, कम होगी ना पहले से। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए is translated parallel to its plane with speed root 3 by 2 c. The velocity is parallel to one of its sides. One of its sides. Then the apparent parameter of the triangle is, we have to calculate the apparent perimeters, sorry, apparent perimeter of the triangle. Okay, now let me make the diagram for you.
So this is the triangle and it has been translated parallel to one of its sides, let's say along this direction. So now this velocity is parallel to this, okay, and this is the altitude in case of equilateral triangle. What is the length of the altitude? It is root 3 by 2a. Na? Those who don't know, they can get like this. It is a by 2, and this is perpendicular. Na? And you can make use of Pythagoras theorem in this triangle ABD. Okay, you know the hypotenuse and base, and you can get the perpendicular. Na? It will come out to be root 3 by 2a. So now, what will be this side? Because it is translated parallel to this one, so this side will not remain a, na? It will become less than this. Okay, so now L will be L naught 1 minus v square by c square, na? And L naught is a, na? And v is root 3 by 2c by c square. So this c and c, it will get cancelled, and it will be 1 minus 3 by 4, that is a by 2. Na? Now, what about other two sides? I have calculated the length of this side, this base BC. Okay. So this is BC, new value. Okay. Contracted value. Now, other two sides are, what about other two sides? Please. कितनी आ जाएंगी आपके अकॉर्डिंग? So it will be a by 4 square plus root 3 by 2a square ना. अब कैसे आया देखिए, अगर a के बजाय वो a by 2 हो रहा है बेटा BC आपका, तो BD भी तो उसका आधा हो जाएगा ना. और अगर BD a by 4 हो जाएगा, आपको पता है AD में तो कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज इन लेंथ ऑफ AD ना, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. और जो डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द मोशन होती हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, दे रिमेन अनअफेक्टेड. सो AD सेम रहेगा बट BD हाफ हो गया, मतलब a by 4 हो गया. तो अगेन मैंने पाइथागोरस लगा दी, तो a by 4 स्क्वायर प्लस रूट 3 by 2a स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो ये आ जाएगा. अब ये कितना आता है इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो अगर मैं एलसीएम लेता हूं, a स्क्वायर बाय 12a स्क्वायर बाय 16, सो a by 4 रूट 13 ना. तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स. पेरीमीटर क्या होता है? a by 2 प्लस a by 4 रूट 13 प्लस a by 4 रूट 13, तो इट विल बी a by 2 प्लस a by 2 रूट 13. तो a by 2 मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये बेटा आंसर आ गया हमारा. ठीक है, बस ट्रिक यही था कि BC में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंगली हमने बाकी साइड्स भी इसकी फाइंड आउट कर ली, तो वहां से हमारा आंसर आ गया. ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है बेटा टाइम डिलेशन. टाइम डिलेशन, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे नजर आते हैं. ठीक है, तो टाइम डिलेशन मतलब स्लोइंग डाउन ऑफ टाइम. टाइम ज्यादा लगता है इवेंट में. स्लोइंग डाउन ऑफ टाइम इन एन इवेंट, मतलब इवेंट जो है इन मूविंग फ्रेम, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है नॉर्मल से. ओके, और इसमें जो रिलेशन आता है, जो आपका टाइम का रिलेशन आता है, मीन्स डेल्टा टी डैश आपका डेल्टा टी बाय गामा, ऐसे लिख सकते हैं. तो टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा लगेगा इसमें. ठीक, और यू कैन सी डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश ना.
It is unlike the earlier expression that we got for length contraction. ठीक है, तो डेल्टा टी डैश यहां पे प्रॉपर टाइम है क्योंकि ये रेस्ट फ्रेम में मेजर करा गया, ये मूविंग फ्रेम में मेजर करा गया आपका. ठीक है, मेजर टाइम इन मूविंग फ्रेम. क्लियर. तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं बेटा. The rate of a clock in a spaceship सूर्य शक्ति is observed from Earth to be 3/5 of the rate of the clocks on Earth or the clock on Earth, and we have to calculate the speed of the spaceship. सूर्य शक्ति relative to Earth, relative to Earth is, and the options are 4/5c, 3/5c, 9/10c and 2/5c. तो यहां पे अब इसको देखते हैं बेटा. सो मेन जो क्रैकिंग लाइन है वो ये है, इसको आपको क्रैक करना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. तो जो क्लॉक स्पेसशिप में रखी हुई है उसका जो रेट है जो अर्थ से हमने ऑब्जर्व किया, इट इज 3/5 ऑफ दैट ऑफ रेट ऑफ द क्लॉक ऑन अर्थ. तो मतलब जो रेट स्पेसशिप है, इसको ऐसे लिख लूं मैं इजी लैंग्वेज में, 3/5 ऑफ रेट ऑन अर्थ. इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम स्पेसशिप में लगेगा ना वो ज्यादा लगेगा. इसका मतलब ये है कि अर्थ के हर 1 सेकंड के बदले में स्पेसशिप पे 3/5 सेकंड होते हैं, मतलब 0.6 सेकंड. ठीक है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है. तो 5/3 टाइम अर्थ. तो उसका आपने रिवर्स कर देना होता है, इनवर्स हमेशा. 3/5 है तो 5/3 कर दो. तो अब हमारे पास आ गया. अब टाइम स्पेसशिप टाइम अर्थ से कैसे रिलेटेड है, टाइम डिलेशन फार्मूला. तो इसको कहना ही राइट, टाइम अर्थ बाय 1 - v² बाय c² स्क्वायर रूट इक्वल टू 5/3 ऑफ टाइम अर्थ. अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, टाइम अर्थ एंड टाइम अर्थ. अब इनको सॉल्व करके हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखते हैं. सो 1 - v² बाय c² इक्वल टू 5/3. सो 1 - v² बाय c² इक्वल टू 3/5. 1 - v² बाय c² is 9/25. So 1 - 9/25 v² by c². So this will be 16/25. So v by c will be 4/5. So v will be 4/5 c. तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया which we were looking for. ओके, तो इस तरह से बेटा और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डिलेशन या बाकी क्वेश्चन जैसे मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक, उनके ऊपर आपसे पूछ सकता है लॉरेंट इनवेरिएंट. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सेकेंड पार्ट में हम रिलेटिविस्टिक डायनामिक स्टडी करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो एजू अंकल को बेटा
सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है एज यू कैन सी, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल, और आपको डुअल मोड में मिल रहा है, पीडीएफ भी है और हार्ड कॉपी भी है। और अभी ये थर्ड ऐड हो गया, हम रिवीजन समरीज वीडियो की फॉर्म में आपके लिए लेके आए। तो अगर आप एजू अंकल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा। आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसमें फिर एक्सपर्ट आपके जो डाउट्स हैं उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, और फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट एक्सेस मिलता है, क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं आपको। ओके, सो 30+ प्रैक्टिस टेस्ट आर देयर एंड कंसिस्टेंट सिलेक्शन अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 सिंस 2016। ओके, सो बेटा जल्दी से जल्दी एजू अंकल ऐप डाउनलोड कीजिए। ओके, सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।